जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो और बात कर रहे हैं पवन कल्याण के बारे में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और आरंभ करते हैं दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I need to be blunt here because enough is enough. If we want to save India, we have to save Hinduism. Pawan Kalyan is fighting to save Hinduism. But Rahul, he is fighting a losing battle because he is fighting alone with his hand tied behind his back, and Udaynidhi Stalin knows this. Yes, he does. His "let's wait and see" remark is more perceptive than it is ominous. He knows the truth that we aren't even thinking of dismantling the constitutional apartheid against Hindus through the many acts, articles and judgments. Truth is, India is emblematic of the hypocrisy, virtue signaling, cowardly stance and double standards of each of our four pillars of democracy, including and especially the judiciary. Let me address them one by one because it's very important. Number one, hypocrisy. Rahul, if you were to ask me the textbook definition of a banana republic, I would say that it is a republic where the Supreme Court stays silent on blatant violation of its own order. It has been more than a year since Udaynidhi Stalin wanted to eradicate Sanatan Dharma. A year since the Tamil Nadu government has been in direct contempt of the Supreme Court order of 2023 that said the state should immediately file cases on instances of hate speech. And yet, nothing has been done either by the state or the Supreme Court. I can only infer that eradication of Hinduism, comparing it to dreadful incurable diseases, calling it a menace upon the world, is not construed as hate speech by the Supreme Court. In which case, it begs the question, why did it then so ruthlessly come down on Nupur Sharma for merely quoting Islamic scriptures and infer it to be hate speech? If this is not hypocrisy and double standards, I don't know what is. Number two, virtue signaling. The Sabrimala judgment, the animal sacrifice ban, the Dahi Handi restriction, Vedic chanting in mountains. How many examples do you need where rituals of Sanatan Dharma have been selectively targeted in the name of reforms? And when it comes to Islam, we fall over each other to overturn even Supreme Court verdicts like the Shah Bano case. Number three, cowardly stands. There already is an ideology that specifically and unambiguously directs the followers to kill, maim, and convert non-believers and all those who profess other ideologies. But does the court have the courage to ban this ideology? Four, double standards. The court says that free speech does not include hate speech. Well, who decides what is hate speech? Polytheists are the worst of creatures, 98.6. Is this hate speech? Do not take disbelievers as friends unless they convert and kill them if they refuse, 489. Is this hate speech? Quote, it is not enough that we merely oppose Judaism. We should eradicate Judaism like we eradicate malaria and corona, unquote. Now I ask you, Rahul, is this statement not anti-Semitic? You'll be in fact arrested in 16 nations for saying this. But replace Judaism with Sanatan Dharma and you not only escape arrest, you celebrate the bigotry unabashedly. Rahul, Udaynidhi Stalin uttered a shockingly anti-Hinduism statement and his subsequent clarification was utterly devoid of truth. If a BJP minister had said what Stalin did about another religion, there'll be a civil war by now. But Hindus are easy to abuse. They don't behead transgressors. Number five, finally, being a Darwinian atheist, I have no skin in the game. But this much I know, Rahul. Hinduism has survived 8 millennia because it imbibes the scientific virtues of diversity, empathy, independent thought and reform. In Hinduism, religion is an offshoot of the way of life, while in Abrahamic ideologies, way of life is an offshoot of religion. It follows that if former is less shackled by rigidity or by rules and diktats, so is more mutatable, celebrating diversity as followers. Just 10 seconds. As always, the source, the fountain that dictates the mutability and eagerness to change. In Hinduism, there are sects that promote and celebrate atheism, Charvaks. There are sects that reject Vedas altogether, Lingayat. Yes. How gloriously ironical is that? Rejecting your holy scriptures and yet being proud Hindus. Just 10 seconds. Can this happen in any other religion? Hinduism is an all-accepting, all-questioning idea. Let me be clear. 10 seconds. If we want to save India, as I said, we have to save Hinduism. But for how long can Pawan Kalyan fight alone, hands tied? For how long? ओके मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो सबसे पहले आप देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें कमेंट्स पे। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं पवन कल्याण के ऊपर। पवन कल्याण आप लोगों को पता होगा कि पावर स्टार नाम की उनका एक मॉनिकर है, उनका एक
निकनेम है, एक उपाधि है जो उनकी जो फैंस है वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार के फैमिली से भी है। उनके जो ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हैं, वो चिरंजीवी है। ही इज़ नॉट अ फ्रॉम अ, वो कोई फैमिली के क्या बोलते हैं, फिल्म फैमिली से नहीं आते हैं, जैसे NTR जूनियर और उनके जो पूरा फैमिली है वो फिल्म फैमिली से आते हैं, और उसके बाद वो उनका फैमिली पॉलिटिक्स में भी गया था। पर ये जो फैमिली है, ये पहले चिरंजीवी आए वो फिल्म फैमिली से नहीं आए थे, उनका पूरा टैलेंट था, टैलेंट स्पेशली इन हिज एक्टिंग तो बहुत अच्छा था। ही इज़ नॉट अ एक्टर लाइक थिस्पियन एक्टर लाइक समझ लीजिए ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ये इरफान खान, ये अमिताभ बच्चन, कमला हासन, ऐसे लोग, ऐसे एक्टर नहीं है वो। हो सकता है वो ऐसे भी एक्टिंग कर सकते हैं वो, पर उनकी जो फोटे है वो एक्शन मूवीज़, जो कॉमेडी मूवीज़, बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। और डांस, उनका डांस तो बिल्कुल फेमस सा है साउथ इंडिया में। और उनके पीक में वो राइवल करते थे रजनीकांत को, और जो दूसरे साउथ इंडियन स्टार्स हैं, पूरा साउथ इंडियन में इनका बोल बाका था। और रजनीकांत ने तो ये भी बोला था कि अगर नॉर्थ तमिलनाडु मूवीज़ में, तमिल मूवीज़ में वो आ जाते तो फिर हमारा कोई रहना देना नहीं रहता। तो फिर इतने बड़े एक्टर थे वो, उनके ही पंचिनों में ये भी एक बहुत बड़े एक्टर थे। अभी भी हैं पावर स्टार पवन कल्याण। तो फिर ये इनका फैमिली का बैकग्राउंड है। तो ये जो पवन कल्याण है, इन्होंने पार्टी जब से स्टार्ट किया है वो यही बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से 2008 का इनका वीडियो दिखाया मैंने, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो हमारा जो मेरा जो एक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर निकालना चाहिए। और उसके ऊपर ही ये पूरा एक हिंदुत्ववादी लीडर बन चुके हैं। वो सब लोग बोल रहे हैं कि वो अभी योगी आदित्यनाथ ऑफ द साउथ हैं, साउथ के योगी आदित्यनाथ हैं पवन कल्याण। और उनका पार्टी का नाम है जनसेना पार्टी। और सब लोगों को पता ही है कि उनके पार्टी और TDP मिला के और BJP मिला के, उन्होंने तीनों ने मिला के जो जगनमोहन रेड्डी का जो पार्टी है उसको हराया था। और उसको हराने के बाद जब तिरुपति तिरुमला टेम्पल में जो लड्डू था, प्रसाद था, उसके अंदर बीफ, फिश ऑयल और दूसरे पदार्थ जब मिले, तब पूरा जो आउटरीच दिखाई दिया हिंदू कम्युनिटी के साथ। तो उसको ये चैनल कर रहे थे पवन कल्याण। वो बोल रहे थे कि उनका जो टेम्पल है, ये जो टेम्पल है, ये उस आंध्र प्रदेश का सबसे पूजनीय टेम्पल है। उधर बहुत सारे लोग जाते हैं, सब वर्ग के लोग जाते हैं, सब कास्ट के लोग जाते हैं। और उधर के जो लोग हैं, मैंने घर घर में देखा है, उधर वीडियोस में देखा है और दूसरी जगहों में देखा है कि उनके घर घर में इनका जो विग्रह का जो फ़ोटो है ना, वेंकटेश्वर राय का फ़ोटो, वो दिखाई देता है आप लोगों को। और वो बहुत पूछते हैं इस भगवान को और इन भगवान को। और उसके ऊपर ही जो जगनमोहन रेड्डी के गवर्नमेंट ने, पहले तो उनका जो फैमिली है वो क्रिप्टो क्रिश्चियन फैमिली हुआ करता था, पर अभी उन्होंने खुद बोल दिया है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अपने घर में बाइबल पढ़ता हूँ, पर बाहर मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ और सब कुछ हूँ, ये सब बोलने लगे। पर सब लोगों को पता है वो ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो पॉलिटिकल लीनिंग है वो पूरी तरह ये क्रिप्टो क्रिश्चियन लोगों का लीनिंग है। और उनकी बहन भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है, उनका पूरा फैमिली क्रिप्टो क्रिश्चियन है। कब क्रिश्चियन बने ये लोगों को पता भी नहीं है। और उनकी जो मदर है, उन्होंने तो पुराना वीडियो उनका वीडियो में दिखाई देता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो क्रिश्चियन है, पर हम वोट लेने के लिए हिंदुओं के पास जाते हैं। और ये आंध्र प्रदेश, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये इधर कितना ज़्यादा पूछते हैं श्री राम को। श्री राम के ऊपर गाने हैं, बहुत ब्यूटीफुल गाने हैं। श्री राम के ऊपर लेख हैं, पोएम्स हैं, ये सब कुछ है। और इनके तो शादी में मैंने वीडियोस देखे, उसमें श्री राम के जैसे, जानकी जैसे, जो जानकी हमारी सीता माता है उनकी जैसे शादी होने का उदाहरण देते हैं। तो फिर ये ऐसा हिंदू कम्युनिटी है उधर का। पर उस हिंदू कम्युनिटी को पूरी तरह कास्ट में बंटवा दिया है। और उनके में एक बहुत बड़ा कास्ट है, कप्पू कास्ट है, उस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी ये हिंदुत्व लीडर बन के पूरा जो कास्ट है, दूसरे कास्ट हैं उधर के, उन सब कास्ट को रिप्रेजेंटेटिव करके वो एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं पवन कल्याण, ताकि हिंदू लोगों का जो ये कास्ट कॉन्शियसनेस है उधर, वो पूरी तरह इरोड हो जाए। और वो होना भी चाहिए। और ये टेम्पल को फ्री करने के लिए भी बोलते हैं।
आप लोगों को पता होगा कि ये जो साउथ इंडिया में जो कोस्टल एरियाज़ है, उधर का जो भी सी बेल्ट है, सी से जो सागर से जो तटा हुआ जगह है, उधर पूरे का पूरा क्रिश्चियन मिशनरीज़ का हाथ लगा हुआ है। अमेरिका के क्रिश्चियन मिशनरीज़ उधर पहुंच चुके हैं, उसका कैश पहुंच चुका है। जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड में ट्राइबल एरियाज़ में पहुंचा है, वैसे इधर जो कोस्टल एरियाज़ है उधर पहुंच चुका है। उनका जोस्वा प्रोजेक्ट नाम का एक मिशनरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा पैसा छूटा है इन लोगों ने। और उधर के जो गवर्नमेंट है, खासकर तमिलनाडु की जो द्रविडियन गवर्नमेंट है, उन लोगों ने बहुत हिंदुज़म को क्रिटिसाइज़ एक ही रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करके उन लोगों को, सब लोगों को बोला है कि तुम इधर क्रिश्चियन बनो। तब अभी भी उधर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही है, पर उसके ऊपर ही आप लोगों को तो दिखाई देता होगा कि पवन कल्याण जब से हिंदुत्व और ये सनातन धर्म के ऊपर बोलने लगे हैं, तब से जो तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं डीएमके के, खासकर उदयनिधि स्टालिन ने तो बोला था कि वो सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और उन्होंने इसके बाद जब ये स्टेटमेंट देने के बाद उनसे एक ANI का रिपोर्टर जाके पूछा था, तब ANI के रिपोर्टर के बोला मैं देखते हैं कितने तक ये चलता है, मेरे को भी पता है, वेट करते हैं हम, अभी देखेंगे हम और कितना वेट होता है, ये सब बोला है उसने। और उसका तो एरोगेंस है भी, वो भी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गया है नेपोटिस्टिक बिल्कुल तरीके से। तो फिर यही है, उधर ये बहुत अच्छी तरह हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और ये होना चाहिए, क्योंकि ये देश भर में एक हिंदुत्व की लहर चलनी चाहिए। बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश में जो डिबैकल बीजेपी के अगेंस्ट हुआ था, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया बटेंगे तो महफिल चलेगी दूसरे लोगों की, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, और ये महफिल लगाएंगे ही। तो फिर नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया, योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया, और शिंदे भी बोल रहे हैं। उन्होंने भी जो रामगिरी महाराज है उनके ऊपर स्टैंड अपना क्लियर किया। और जो ये AIMM के लोग आए थे मुंबई में, उन लोगों को लाठीचार्ज करके भगा दिया उधर से। तो फिर उधर भी हिंदुत्व चल रहा है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी इलेक्शन होने वाला है, उधर भी बीजेपी आएगा। पता नहीं क्या होगा, हो सकता है बीजेपी हार जाए, पता नहीं उधर का मेरे को इतना सिचुएशन। अभी तो पोल्स में तो बोल रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, उधर आगे जाके पता चलेगा। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप देख सकें, अपना विचार व्यक्त कर सकें कमेंट्स में। तो फिर जय श्री राम, जय वेंकटेश्वराय, जय हिंद।